इत्थे स्कूलों 'च भी घरां 'च भी बच्चों नूं कहंदे ने जी पंजाबी पेंडू दी जुबान। पंजाबी माँ बोली आ, माँ बोली नूं कदे भुलना नहीं। मैं सिखां नूं क्रेडिट दिंदा कि उन्हां ने इस चीज़ नूं वर्ल्ड वाइड मनवाया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ महफिल 'ਚ बैठे हो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ यार ए शोरा पा दे ए काम कर दे, वो महफिल के आदाब के खिलाफ है। जो तमीज़ और तहजीब का दायरा है ना वो उर्दू ज़ुबान है। जो पंजाबी नहीं बोल सकते वो कहते हैं कि जी हमें जाहिलों वाली जुबान लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के जानते हैं आप, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पंजाबी ज़ुबान पे है, पंजाबी कल्चर पे है, पंजाबी सकाफ़त पे है और इसके साथ जो पाकिस्तानी माशरे में नफ़रत रवा रखी जाती है उसके ऊपर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लोगों से। इस वक्त हम एक गुंजान आबाद एरिया में मौजूद हैं, अनारकली के। लोगों से ये पूछेंगे, ये जानेंगे, ये समझेंगे कि आप बहैसियत पंजाबी होते हुए भी पंजाबी ज़ुबान से इस कदर नालायक क्यों हैं, अपनी नई नस्ल में उसको मुंतकिल करने से घबराते क्यों। और इसके अलावा हम लोगों से ये भी जानेंगे, कोशिश करेंगे सिख यात्रियों को, सिख लोगों को ढूंढने की कि उन्होंने पंजाबी के ऊपर बड़ा काम किया। साथ साथ लोगों से आखिर में एक और सवाल ये भी पूछेंगे कि जिस तरह फ़ारसी हमारे निसाब से निकल कर किस्सा पारीना बन गई, क्या वही हाल पंजाबी का तो नहीं होगा। इस हवाले से आवाम की राय जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। मेरे साथ एक सिख फैमिली मौजूद है जो मलेशिया से आई है, पाकिस्तान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैनू यह दसो पंजाबी जुबान के उत्ते अज साडा शो है कि पंजाबी की वैल्यू की है। पंजाबी पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी पंजाब के लोग बोलना क्यों छड़ गए हैं पंजाबी, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਨਵਾਇਆ। ਕੀ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜੇ ਬੋਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੌਮ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। चल जी। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੂँकि ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਹੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਪੈਂਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਮਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਚੂँकि ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੂੰਗੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। फर्क ये है कि उधर भी थोड़ा जा मैंने देखा हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़े जा हिंदी मिक्स, हाँ मिक्स हो या
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ भी है ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर हमारा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो पंजाबी ज़ुबान है उसको पेंडू की ज़ुबान क्यों समझा जाता है? पंजाबी ज़ुबान पेंडू की तो नहीं है, लेकिन आम फहम जो लोग हैं उनमें ये एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है। मिसाल के तौर पे आप देखें, जब भी हम कहीं मिसाल के तौर पे किसी कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं कहीं उर्दू में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। कल क्यों? जैसा माहौल वैसी ही गुफ्तगू। तो फिर पंजाबी पे सड़क की ज़ुबान हो, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल। क्या वजह है कि हमारे यहाँ कल पहले पंजाबी लिखने से ख़त्म हुई, ठीक है, आप देख ले पंजाबी सब्जेक्ट को रखता है, बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया पंजाबी सब्जेक्ट, है ही नहीं है। गुलाबी पंजाबी बोलते हैं हम लाहौरी, हाँ कभी बार बोल लेते हैं, गुलाबी पंजाबी है ना, हाँ। उर्दू की आमेजिश हो गई। ऐसे ही है। देखिए उर्दू के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, आप ये बताएं कि आप चाहेंगे आपके बच्चे मास्टर्स में पंजाबी बोले? बिल्कुल नहीं। आप पंजाबी हो गए ये कह रहे हैं? देखिए पंजाबी ठीक है अपनी जगह, लेकिन बच्चे आजकल के तो बच्चे वैसे ही उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, अच्छे स्कूल हैं। ये तो माँ बाप पे नहीं डिपेंड करता, हाँ माँ बाप भी डिपेंड करता है। लेकिन आप पंजाबी होते हुए कह रहे हैं कि वो ना बोले पंजाबी। तो भाईजान हमारा वक्त और था, आपका वक्त और था। आपको नहीं लगता गोरे ने हमें अपनी पहचान पे शर्मिंदा किया? हाँ बिल्कुल किया हुआ तो इसको बदलने का वक्त नहीं आया? आया हुआ है, इसलिए तो कहता हूँ कि बच्चों को उर्दू बोलनी चाहिए। अच्छा, हम लोग पंजाबी म्यूजिक पसंद करते हैं, पंजाबी मूवी पसंद करते हैं, पंजाबी बोलना क्यों नहीं पसंद करते हैं? आज देखें आप बिजनेस करती हूँ, बिल्कुल नहीं, आजकल तो बच्चे ही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस किस मूवी ने किया? द लेजेंड ऑफ मौला जट। चूड़ियाँ हो गई, मौला जट वगैरह। मौला जट ना, मौला जट किस जुबान में आई? पंजाबी ठोस पंजाबी है, इसका मतलब है हम देखना तो पसंद करते हैं, बोलना नहीं पसंद। बोलना पसंद नहीं करते। सिख कौम जो है उसने पंजाबी को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया, को क्रेडिट देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, वो अपना अपने हिसाब से गुफ्तगू उनकी वो गुफ्तगू ही पंजाबी है। सिख जो है ठोस पंजाबी है। वो क्यों नहीं शर्मिंदा होते? शर्मिंदा हम भी नहीं है, लेकिन हम बस ये कहते हैं हमारी आने वाली नस्लें जो उर्दू बोले, बस शर्मिंदा तो नहीं है। और शर्मिंदगी, आपका ब्रदर नाम क्या है? मोहम्मद नहीं। नईम साहब, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, आपने मुझे वक्त दिया, आपका वक्त भी बहुत कीमती है, लेकिन शर्मिंदगी यही है ना कि हम चाहते हैं हम उसे भुला दें, जब बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तो वो जाहिर बात है कि हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे भूल जाएंगे। हम बड़ी सही बात की जी नईम साहब ने, उन्होंने कहा आने वाले बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पंजाबी बोलें। इस हवाले से आगे चलेंगे, लोगों का आपको मौक़िफ़ सुनाएंगे। अब यहाँ पे एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पंजाबी ज़ुबान वक्त के साथ बिल्कुल डिप्लीट, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? पंजाबी है, पूरे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अच्छी ज़ुबान है, लेकिन एक होता है ना महफिल के आदाब होते हैं, एक तमीज़ का दायरा होता है, वो है उर्दू ज़ुबान। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ महफिल 'ਚ बैठे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ यार ए शोरा पा दे, ए काम कर दे, वो महफिल के आदाब के खिलाफ है। जो तमीज़ और तहजीब का दायरा है ना, वो उर्दू ज़ुबान है। ज़ुबान एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, आपका जज्बात का इजहार है, उसमें शुस्ता शाइस्ता उर्दू, ठीक है, उर्दू के भी लहजे हैं, एक कराची का लहजा है, वो मैं इस वक्त टीवी पे बोल नहीं सकता, ठीक है, तो एक पंजाबी का भी लहजा है, कहते हैं पंजाबी तो बड़ी गूढ़ी ज़ुबान है, की कहो? पंजाबी बड़ी अच्छी ज़ुबान है, लेकिन पंजाबी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुनासिब नहीं हैं, उन अल्फाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो हमारे काबिल एहतराम उस्ताद हैं, उनमें ये काबिलियत है, वो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो आपका कहने का मकसद है कि वक्त के साथ साथ उसके कुछ अल्फाज की अदायगी ख़राब हो गई है। नहीं तो पंजाबी बड़ी खूबसूरत ज़बान है, पंजाबी लोग बड़े खूबसूरत हैं, पंजाब का शहर बड़ा खूबसूरत है, सिर्फ यहाँ के कुछ लोगों ने जो है ना इसको बदनाम कर दिया। अच्छा, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएं, आप माशाल्लाह बड़े इस हवाले से जानते हैं चीज़ों को। सिख कौम ने हमेशा सीने से लगा के इस ज़ुबान को चले। अभी वो हमें कुछ फॉरेनर टूरिस्ट मिले सिख, उन्होंने सारी बात पंजाबी में की, उनकी तो इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, सिखों की पंजाबी वो टूरिस्ट हैं। यहाँ पंजाब की आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ के पंजाब में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने उसको तहजीब को जो है ना ख़राब करके रख दिया। आप ये चीज़ उन सिखों में नहीं देखेंगे। आप सिखों से गुफ्तगू करें, उनके एक तहजीब है, एक गुफ्तगू का अंदाज़ है, एक लहजा है, बड़ा प्यारा, बात करने का मज़ा आएगा। यहाँ की पंजाबी ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना यहाँ के लोगों का है कुछ, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी भी होती है। ज़ुबान
एक दूसरे से ताल्लुक का इजहार है, लेकिन भाई की बात से किसी हद तक मैं इस बात को मानता हूँ कि ठीक है, इस पर शर्मिंदगी भी होती है। लास्ट में मुझे ये बताएं, फारसी जिस तरह हमारे निसाब से निकल गई, ठीक है, क्या अब आपको लगता है कि पंजाबी भी कुछ अरसे तक बिल्कुल किस्सा पारी ना हो जाए? जब तक पंजाब है पंजाबी ख़त्म नहीं हो सकती। हम बोलेंगे नहीं, बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही, नया लिटरेचर नहीं बन रहा उसके अंदर। उर्दू में शायरी आज भी आ रही, सारा कुछ। पंजाबी के शायर भी बहुत कम है, उसकी वजह यह है कि उनको सुनने वाले बहुत कम है। तो जब एक चीज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो डिप्लीट हो जाती है। ये देखें ना, ये सबसे बड़ी बात हमारे तालीम के निज़ाम में होना चाहिए, और इस निज़ाम को लाने वालों की जिम्मेदारी है कि ये पंजाब को जो है पंजाबी ज़ुबान को लिखने के लेके चले साथ। अगर वो ही ख़त्म कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है इन राइटिंग पंजाबी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पंजाबी ज़बान ख़त्म नहीं हो सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमें सिख यात्री मिल रहे हैं, सिख लोग मिल रहे हैं, विजिटर्स मिल रहे हैं। हमारा सर टॉपिक है कि पंजाबी जो है पाकिस्तान में, इसको हमेशा ना एक अंग्रेज़ों की वजह से कह लें या माइंडसेट की वजह से एक नफरत रवा रखी गई है। मतलब उससे एक हेट्रेड है कि बच्चों को उसे बोलने नहीं दिया जा रहा घर में। स्कूल में एज ए सब्जेक्ट भी वो बहुत डाउनग्रेड हो गया। क्या कहेंगे? नहीं, पंजाबी एक लैंग्वेज है, इन्हें मेंटेन करना चाहिए। ओके, लाहौर में जो आता है, जो पंजाबी लोग मिलते हैं, उसकी पंजाबी बहुत डूंगी होती है। ओके, इंडिया में भी जो चाहिए इन्नी डूंगी नहीं जिन्नी लाहौर पंजाब में है। तो ताइयां इन पक्की पंजाबी होती है। उसलिए एक लैंग्वेज तुसी इतने प्रमोट करते सिर्फ उर्दू। ओके, उर्दू ही प्रमोशन है, पर पंजाबी नू लगता जिमें कि दबाई जाती है। ठीक है, वो मेरा ओपीनियन है। मैं could be wrong, I could be wrong, I could be right, but Punjabi must maintain the culture, the language. When the language dies, a lot of things will die. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਫਾਰਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। That's what I'm. Okay. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਇਟਸ ਕਮੈਂडेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, हमारा जो आज का मौजू ज़ेर बहस है आवाम के साथ, आवाम की आवाज़ में, कि पंजाबी जो ज़ुबान है, किसी वक्त में कहते थे सूफिया की ज़ुबान, आज उसे उजड़ जाहिल के तौर पे समझा जाता है और इसमें हम पंजाबियों का ही कसूर है। क्या कहें? नहीं, ये जाहिलपन नहीं है, लेकिन ये है कि पंजाबी भी एक अच्छी ज़ुबान है, लेकिन पंजाबी भी एक बोलना चाहो एक अच्छी चीज़ है। उर्दू ये है कि जो पंजाबी नहीं बोल सकते वो कहते हैं कि जी हमें ये जाहिलों वाली ज़ुबान लगती है, वो चीज़ है। लेकिन पंजाबी अच्छी है और मैं इसे बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि हम भी पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और जिनको नहीं आती उनको तो जाहिल वाली लगती ही है, ये चीज़ है। अच्छा मेरी बहन, एक चीज़ मुझे बताएं, क्या सिख कौम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पूरी दुनिया में पंजाबी को रजिस्टर कराया? सिख कौम को, क्योंकि देखिए कनाडा की इस वक्त सेकंड बिगेस्ट लैंग्वेज पंजाबी है, और सिख जब से गए हैं तब से पंजाबी कल्चर भी वहाँ पे पहुँचा है। पंजाबी वालों को क्यों इतना बुरा समझते हैं? पंजाबियों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? यही मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों उड़ाते हैं मजाक? पंजाबी पंजाब उर्दू जो ज़बान स्पीकिंग है वो कहते हैं जी ये पंजाबी है, जी ये पेंडू है, वो क्यों कहते हैं फिर? इसीलिए तो मैं आज इसी टॉपिक पे तो निकला हूं कि हम लोग पेंडू क्यों कहते हैं। जुबान तो सिर्फ आम आपसे और मेरी बातचीत का जरिया है ना जी। ये है कि भाई आप उसे पंजाबी पेंडू कह लो या क्या कह लो, अदरवाइज पंजाबी लैंग्वेज कोई बुरी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, पंजाबी बोल सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। पंजाबी जुबान से एक नफरत रवा रखी जाती है हमारे माशरे में, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे बच्चे को पंजाबी में बात करें, माँ कहते उर्दू च गल कर, ठीक है, और ये बात भी उसे पंजाबी में कहते। क्या कहें? हाँ जी, मैंने तो अपनी क्लासेस में पंजाबी बुक पढ़ी और मुझे उस वक्त तो बड़ा लुत्फ़ आता था पंजाबी पढ़ने में भी, लिखने में भी। लेकिन उर्दू को जो है ना मुआशरे में तरजीह ज़्यादा दी जाती है। वजह क्या? कहते हैं जी कि मतलब सबसे पहले तो पंजाबी ही बोली जाती थी। भाई कह रहे थे जी पंजाबी महज़ब ज़ुबान नहीं है। वो किताबी लफ्ज़ों में जो है वो इसी तरह कहा जाता है जी कि मुआशरती ज़ुबान जो है ना, मुआशी ज़ुबान वो है उर्दू। तो उर्दू में ना ज़रा जी हाँ जी ज़्यादा है, मिठास ज़्यादा है। उर्दू लखनऊ की ज़ुबान ऐसे ही है ना, लखनऊ के नवाब, लखनऊ मुगल पे जनाब शुस्ता ज़ुबान। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पंजाबी जो है वो तो इधर की लोकल ज़ुबान थी, इधर का लोकल पंजाबी से नफरत क्यों करता है ज़ुबान? वो इसलिए करता है कि पंजाबी में ना कुछ लफ्ज़ हैं तो बोले जाने वाले, लेकिन उसमें ना कुछ तलखी सी फील होती है, जैसे ओए, समझ रहे हो? कराची की उर्दू सुनी? हाँ जी, वो तो बड़ी धीमी सी है।
कराची की उर्दू सुनी है? हाँ सुन। तू से स्टार्ट हो। नहीं फिर ये मैंने कभी नोट नहीं किया जी। कहने का मकसद ये है, जुबान पे मेरा किसी पे हर्फ उठाने का मकसद नहीं है। जुबान एक ताल्लुक का इजहार है, एक जज्बात का इजहार है। हमारा बस आज का मकसद ये है कि लोगों में एक आगाही फैलाई जाए कि जुबान मोहब्बत का इजहार है, नफरत का। हाँ जी बिल्कुल सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। माजी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पंजाबी ज़ुबान की खोई हुई मीरास और पाकिस्तानी माशरे का रवैया। आपको नहीं लगता हम पंजाबी ज़ुबान से नफ़रत में या उसे पेंडू की ज़ुबान समझते हुए, जाहिल की ज़ुबान से इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने अपनी असल को ही भुला दी? हाँ जी, ये तो है। आजकल के बच्चे तो ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी कम ही बोलते हैं, लेकिन हम अपने घरों में अभी भी पंजाबी बोलते हैं। आप तो माशाल्लाह बोलती हैं, लेकिन क्यों हम लोग एक जैसे ना झिझकते हैं कहीं ऐसी महफिल में चले जाए? जी जी, ये तो है कि कहीं जाते हैं तो सारे उर्दू बोल रहे होते हैं, तो जाहिर हमें भी उर्दू बोलना पड़ती है। अच्छा, तो अभी माजी हमें कुछ सिख मिले यहाँ पे आए हुए थे डेलीगेशन, उन्होंने हमारे साथ टोटल पंजाबी में बात की और उन्होंने कहा हम तो पंजाबी जुबान को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि दुनिया में रजिस्टर हो। सही बात, उनका कल्चर ऐसा है ना, हमारा तो वो अब हमारा भी कल्चर पंजाबी है, लेकिन यहाँ अब देखना कम होती जा रही है। माजी, आपको नहीं लगता हम जातों की हद तक पंजाबी रहे? ये भी है, हाँ है। अच्छा माजी, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी बात है जो, जिस तरह एक बच्चा है वो घर में दाखिल होता है, माँ को वो मामा कहने लग गया, ठीक है, दादी को वो दादो कहने लग गया, हमने अल्फाज को इतना बिगाड़ दिया कि रिश्तों की जो वो एक थी ना एहसास, वो भी निकल गया, ठीक है। आपको नहीं लगता कि बच्चों को वापस दादियों के लिहाफ में ओढ़ के वो पंजाबी में जो बचपन में उनको कहानियाँ सुनाती थी? लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसा हो, क्योंकि लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत मुश्किल है। ट्राई वैसे करें तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं अब लोग इस तरफ आए। पंजाबी की गाली सुना दो। पंजाबी अपना कल्चर है, बोलना चाहिए, तो तुम भी बोलो, असी भी बोलने। बहुत शुक्रिया माजी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस तरह के जो बुजुर्ग हैं ये हम लोगों की ना मिरास है। इन लोगों के साथ अगर आप अपने बच्चों का वक्त गुजरवाएंगे तो शायद वो पंजाबी के जो चंद अल्फाज हैं, चंद मिठे मिठे बोल ने, वो उन्हों की शायद जिदा कहते ना जेन दे किसी गोशे च महफूज रह जान। इस वाले ना अगे चलेंगे तो होर लोगों गल करांगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? अदील नईम। अदील साहब, पंजाबी ज़ुबान की अहमियत पे बात कर रहे हैं हम। हमारा निसाब में भी पंजाबी को हमने कॉर्नर कर दिया, माशरे में भी कॉर्नर कर दिया, कह दिया जाहिल की ज़ुबान है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पंजाबी बोलने वाले को हम कहते हैं कि अजीब ही एक है कि ये बिल्कुल फारिग है, ये यानी किसे कहते हैं कि पेंडू है, उसको हम साइड पे करते जा रहे हैं और अपने आप को दूसरों की लैंग्वेज को पकड़ पकड़ के आगे आ रहे हैं। जैसे कि आप देखें, सिख को लगा लें, इंडियन सिख लगा लें, वो अपनी ज़बान को किस तरह उठाते हैं, हमें जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएँ उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को आगे रखना है, उसी को करवाते हैं। हम जाके जैसे गोरे हैं या किसी और के सोच रहे होते हैं इसे बात करें तो कैसे करें, इसको कैसे समझाएं, इंग्लिश में पहले हम मार खाते हैं और उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम भूल ही जाते हैं कि इसको भी हम लेके चलेंगे आगे पूरी दुनिया में। तो ये भी एक ज़ुबान है, मानी जाएगी कि कोई मुल्क है पाकिस्तान, कोई पंजाबी ज़बान है, इसकी कौमी ज़ुबान है उर्दू। तो उर्दू में अगर उर्दू में कोई बोलता है तो उसको कहते हैं यार ये एजुकेटर लड़का है, एजुकेटर फैमिली उर्दू बोल रही है। और जो पंजाबी बोलते कहते हैं ना जाली जाहिल है, लोरी है पक्का, ठीक है, या पेंडू है, पिंड से कितों आया है। आपको नहीं लगता कि पंजाबी दुनिया की वाहिद कौम है जी अपनी जुबान में नफरत कर दी? ये बात सच है? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए? हम पंजाबी मूवी देख लेते हैं, पंजाबी म्यूजिक को लव करते हैं और इंडियन पंजाबी सॉन्ग को तो बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान को भी लाइक करते हैं, लेकिन खुद पंजाबी नहीं बोलते। अगर हम खुद पंजाबी बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा यार है कि जहला में गल कर रहे हैं, ऐसी है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जो ज़बान है वो प्रमोट करें और ज़्यादा, ठीक है, अपनी फैमिली में भी। हमारा स्क्रिप्चर से तो निकल गई पंजाबी। कितने लोग हैं पंजाबी लिखने वाले? मेरे ख्याल में चंद एक होंगे। बहुत कम है। और शहर में तो अक्सर पंजाबी बोली जाती है अंदरून के अंदर, और अगर आउट साइड भी जाएंगे तो उधर तो ज़्यादा उर्दू ही है। और हमारे कुछ स्टार्स हैं जो इंडियन 6 मूवीज़ के उनके साथ मिल के पंजाबी मूवीज़ को बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कुछ चल रहा है पंजाबी, वो किस तरह अपनी लैंग्वेज को आगे लेके चल रहे हैं, और हम भूल ही गए हैं इस चीज़ को, हमें भी करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था पंजाबी ज़ुबान की वैल्यू के ऊपर था, पंजाबी ज़ुबान की अहमियत के ऊपर था,
हमारे माशरे का पंजाबी ज़ुबान के साथ एक नामुनासिब जो रवैया है उसके ऊपर था। ज़रूरत इस अमर की है और हमने लोगों को भी यही समझाने की कोशिश की कि अपने बच्चों को वापस अपनी माँ बोली से जोड़ें, अपनी रूट्स से जोड़ें। इस पाकिस्तान में पंजाबियों ने इस मुल्क को बनाने के लिए बड़ा खून दिया, बड़ी जिद्दोजहद की है। हमने आपको कुछ सिख यात्रियों से भी मिलवाया, उनके जज्बात सुनाए। उनके मुताबिक यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छी पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी की जो अहमियत है उसको वो समझते हैं, समझाते हैं, अपने मुल्कों के अंदर उसका इजहार करते हैं। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।